So, dear students, today we will be studying various methods of purification or refining of metals. The metal which we obtain after various metallurgical operations is basically impure. So, this has to be further purified. The process which we use for purification of metal, that is called as refining of metal. The metal which we obtain after various metallurgical operations is called crude metal. These are the various methods used. First method is distillation method. By this method, metals like zinc, cadmium, mercury, which get converted into vapors easily, are purified by this method. डिस्टिलेशन मेथड में हम उन मेटल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं बच्चे जिसमें इजी कन्वर्शन इनटू वेपर की टेंडेंसी हो, यानी कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो. So in this method, crude metal is heated in a vessel. The metal form vapors, which are condensed separately in a receiver. The impurities are left behind in first vessel. Suppose ये हमारा डिस्टिलेशन apparatus है ना, इसमें हमने impure metal को ले लिया, इसके ऊपर ये कंडेंसर लगा है और यहाँ पे लगी है बच्चे कंडेंसेशन पाइप, कंडेंसर जिसको, दिस इज कंडेंसर, दिस इज डिस्टिलेशन apparatus. जब हम हीट करेंगे, what will happen? The metal form vapors. By this method, we purify those metals which easily form vapors. There is zinc, cadmium, mercury. So metal form vapors. The vapors are condensed. कंडेंसर की मदद से हम वेपर्स को कंडेंस कर लेंगे, है ना. ये कंडेंस करने के लिए हम जैसे नॉर्मल जो कंडेंसर होता है इसमें वाटर सर्कुलेट करते रहते हैं हम, तो जब वेपर इसमें से पास करके कंडेंस हो जाते हैं, ये हम नॉर्मल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं. कंडेंस करके हम यहाँ पे मेटल्स को ऑब्टेन कर लेंगे, प्योर मेटल को. Impurities are left behind in the container, original container. Next method is liquefaction method. Liquefaction method, this method is used when impurity of metal is having more melting point than the metal itself, or the melting point of metal is less than the impurities. जब melting point metal का impurity से कम हो, metal like bismuth, tin, lead, mercury are purified by this method. The impure metal is placed on sloping hearth of reverberatory furnace. ये मैंने आपको दिखाया भी था बच्चे, रिवर्बरेटरी फर्नेस. ये देखें, लिक्वेशन मेथड हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर में भी यूज किया था, अगर आपको याद है तो. दिस इज द स्लोपिंग हर्थ ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस. हियर वी हीट द इंप्योर, यहां इंप्योर ओर लिखा है, यहां लिखेंगे इंप्योर मेटल. मेटल मेल्ट्स एंड फ्लोज डाउन लीविंग बिहाइंड द इंप्योरिटी. मेटल मेल्ट करेगा, फ्लो डाउन करेगा, इंप्योरिटी हर्थ के ऊपर रह जाएगी. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज लेस देन द इंप्योरिटी. मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटी से क्या है बच्चे, कम. ठीक है ना. The impure metal is placed on sloping hearth of reverberatory furnace and is heated in an inert atmosphere of carbon monoxide. ये एडिशनल है यहाँ पे, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ताकि जब हीट करें तो जो आपका मेटल है वो ऑक्सीजन ऑफ एयर से कंबाइन करके ऑक्साइड ना बना दे. So metal is to be heated in inert atmosphere of carbon monoxide. The metal melts and flows down, leaving behind the impurity. Next method is oxidation method. Oxidation method. Easily oxidizable impurities can be removed by this method from crude metal. Metals like copper, silver, iron, and etc. are refined by this method. Cupellation. इसकी आगे types, दो types हैं बच्चे, cupellation, vaporization. The crude metal is taken into cupel and a blast of hot air. Cupel and a blast of hot air or oxygen is blown into it. इसमें से blast of hot air हम pass करेंगे. Blast of hot air. The impurities get converted into volatile oxides and escape out along with blast of hot air. एयर के साथ ही impurities भाग जाएंगी, है ना. A cupel is a boat shaped pan with shallow hearth. जो hearth होगा इसका shallow होगा, ऐसे shallow hearth, deep नहीं होगा.
made of cement or bone ash. Crude silver having lead as impurities purified by this method. सिल्वर की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की बड़ी कम है एज कंपेयर टू लेड. So when we pass blast off hot air, lead get converted into lead monoxide, which is volatile, escapes out with the blast of hot air, leaving behind pure silver. This method is used for refining of those metals in which impurities have greater tendency to get oxidized than the metal itself. है ना, जिसमें impurity की टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने की than the metal itself. तो इसमें हम उन्हीं मेटल्स को बचे प्यूरिफाई करेंगे जो मेटल ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी कम रखते हैं. जैसे हमने बात की किसकी वजह, सिल्वर की. नेक्स्ट मेथड इज बेस्मराइजेशन. ये भी ऑक्सीडेशन की टाइप है. impure or crude metal is taken in a specially designed pear shaped furnace called Bessemer converter, into which blast of hot air and sand is blown. Impurities get removed as volatile oxide and escape out. Impurities of sulfur, phosphorus, arsenic present in pig iron can be removed by this method. तो बेस्मराइजेशन और क्यूपुलेशन में थोड़ा सा ही अंतर है बच्चे. एक मतलब अंतर किसमें है, अंतर है टाइप ऑफ फर्नेस. एक में हम यूज कर रहे हैं बच्चे पियर शेप्ड फर्नेस, एक में यूज कर रहे हैं बोर्ड शेप्ड विद शैलो अर्थ. क्यूपुलेशन में हम यूज कर रहे हैं बोर्ड शेप्ड और इसमें यूज कर रहे हैं हम पियर शेप्ड. ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर हमने दोनों में पास करना है ना. इस मेथड में हम जैसे आयरन को प्यूरिफाई करते हैं बेस्मराइजेशन. impurities of sulfur, phosphorus get oxidized and blow away with the hot air. सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाएगा, आर्सेनिक ऑक्साइड बन जाएगा. ऑल दीज आर volatile impurities and escape out. Next method is pooling or furnace refining. Pooling or furnace refining. इसमें क्या करते हैं बच्चे, this method is used to remove reducible oxides from metal. Reducible oxides मतलब इसमें जो impurity होगी ना वो ऐसे ऑक्साइड की होगी which can be reduced, जिसको हम रिड्यूस कर सके. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल certain metals contain impurity of their own oxide. They can be purified by this method. जैसे कॉपर है, कॉपर में अपनी ऑक्साइड की इंप्यूरिटी है. कॉपर contain the impurity of its own oxide, अपनी ऑक्साइड की. And this impurity is reducible. इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, crude metal is taken in shallow hearth of reverberatory furnace. shallow hearth of reverberatory furnace इसमें ले लिया हमने इसको. And then stirred with green logs of wood. ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड के साथ इसको बच्चे स्टिर करना. ग्रीन लॉग्स, लकड़ी के बड़े बड़े लट्टे, ग्रीन, सूखे हुए नहीं लेने, सूखे तो जल जाएंगे. ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड. गैसेस हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, इथिलीन released by decomposition of green logs of wood reduce the oxide of metal present as impurity to the pure metal. कॉपर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगा कॉपर में. और जो ये मीथेन, इथेन या इथिलीन है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देंगे, इससे ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगे और भाग जाएंगे बाहर को. सो पूलिंग मेथड में क्या करते हैं हम, वी स्टिर द मॉल्टन मेटल विद ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड. स्टिर करते हैं ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड. Hydrocarbons like methane, ethane, ethene produced by released by decomposition of green logs of wood reduce the metal oxide into the metal. Reduce the metal oxide into the metal. So इस मेथड को यूज करते where the oxides are reducible. Reducible oxides, so impurity in the form of reducible oxide, that is oxides which can be reduced. Very important method, electrolyte refining. This method is widely used for refining of metals like copper, silver, gold, lead, aluminium, zinc, etc. इसमें क्या करते हैं हम बच्चे, impure rod. Impure rod is made, ये आपकी impure rod आ गई बच्चे, it is made anode. इसको बनाते हैं एनोड. Thin sheet of pure metal rod उसी की is made cathode. Electrolyte taken is aqueous solution of salt of same metal. Aqueous solution of salt of same metal. जैसे सपोज आपने कॉपर को प्यूरिफाई करना, तो ये बच्चे कॉपर की रॉड, ये भी कॉपर की. फर्क क्या है,
ये प्योर होगी और ये क्या होगी, इम्प्योर। ठीक है, और इसी का एक्व सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, एक्व सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सेम मेटल। अब होगा क्या, व्हेन यू पास द करंट, copper sulfate ionizes to give copper 2 positive plus sulfate 2 negative, ये बनाएगा। copper 2 positive from the electrolyte go to the cathode and get deposited there, that is size of cathode increases। ठीक है, at the same time copper 2 positive बच्चे कहां जाएगा, कैथोड पे, और 2 इलेक्ट्रॉन वहां गेन करेगा और कॉपर बनाएगा और वहीं डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड का साइज बढ़ेगा। At the same time, equivalent amount of copper from anode dissolve into the solution। At the same time, उसी समय equivalent amount, उतना ही, क्या, उतना ही जो आपका कौन कॉपर है, उतना ही कॉपर बच्चे डिसॉल्व हो जाएगा, किससे, एनोड से। क्योंकि देखें, जब कॉपर पॉजिटिव चला गया तो यहाँ कौन रह गया, सल्फेट। अब एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन तो पूरा करना है, जहां तो सल्फेट एनोड को जाके इलेक्ट्रॉन दे, सल्फेट एनोड को इलेक्ट्रॉन दे, एनोड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर खुद मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो यहाँ खुद मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इक्वलेंट अमाउंट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, द साइज ऑफ एनोड गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसका साइज घटता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर जाएगा कैथोड के ऊपर और एनोड से कॉपर आएगा इलेक्ट्रोलाइट में, जितना यहां से इधर जाएगा उतना यहां से इधर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, नुकसान किसका हुआ, एनोड का, फायदा किसका हुआ, कैथोड का। इलेक्ट्रोलाइट का जितना कॉपर कम हुआ उतना उसको मिल गया कहां से, इलेक्ट्रोड से, इम्प्योर इलेक्ट्रोड से, है ना। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इम्प्योरिटीज गेट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोड एज एनोड मड, इम्प्योरिटी नीचे बैठती जाएगी एनोड मड के तौर पे, एनोड मड। दिस इज द रिएक्शन। ये बच्चे देखें, कॉपर का ही दिखाया हुआ है यहाँ पे भी, है ना। प्योर मेटल रॉड, प्योर मेटल रॉड को क्या बनाया है बच्चे, अगर आप गौर से देखें, इट इज मेड कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल। इम्प्योर मेटल रॉड, इट इज मेड एनोड। इलेक्ट्रोलाइट टेकन इज एक्व सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सेम मेटल। और ये देखें, नोड मड दिखाया नोड के नीचे, इसका साइज घटता हुआ दिखाया, देखें ऐसे कर्व देखे, और इसका साइज बढ़ता हुआ दिखाया, ये यहाँ लिखा हुआ है। कॉपर सल्फेट आयोनाइज होगा, कॉपर जाएगा कैथोड पे, और उसी समय इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व एंड गोज इनटू एक्वस सॉल्यूशन। Then another method, this is Van Erkel method. This method is used to get ultra pure metals like zirconium, titanium, etc. The impure metal is converted into volatile unstable compounds. Impure metal को volatile unstable compound में convert करेंगे, जैसे titanium into titanium tetraiodide, zirconium into zirconium tetraiodide। मतलब किया क्या आपने, आपने ले लिया मेटल से zirconium, impurity भी है, आयोडीन से ट्रीट किया, क्योंकि जिरकोनियम आयोडीन से रिएक्ट करके वोलाटाइल कंपाउंड बना रहा है, ये बच्चे इवेपोरेट हो जाएगा और इन वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे। वेपर्स आर प्योर, इंप्योरिटी रिमेन बिहाइंड। वेपर्स को भी स्ट्रांगली हीट करके तोड़ लेंगे टू गेट बैक द प्योर मेटल। द वेपर्स आर देन ब्रोकन एट हायर टेम्परेचर। फर्क देखिए बच्चे, इनिशियल रिएक्शन हम कर रहे हैं 870 केल्विन पे, जिरकोनियम प्लस आयोडीन गिव जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड एट 870 केल्विन, and then strongly heating at 2075 Kelvin to get pure zirconium, है ना। Titanium heated at 523 Kelvin with iodine to get titanium tetraiodide vapors. Impurities remain behind, and at higher temperature it break to give the pure metal. This is Van Erkel method to get the metal in ultra pure state. Next method is zone refining. Very interesting method. Zone refining. This method is used to obtain metals in high state of purity. इसमें भी बच्चे metals को आप high state of purity में obtain कर सकते हैं, like silicon, germanium. This method is also called fractional crystallization method. Both are distillation, ये है crystallization. This method is based on the principle that impurities are more soluble in the melt than the pure metal. Impurities melt में ज्यादा soluble हैं than the pure metal. मतलब melt molten state में ज्यादा soluble है than the pure metal, जो crystallize हो रहा है pure metal. Hence an impure metal on solidification will deposit crystals of pure metal. इसलिए जब impure metal crystallize होगा, melt से crystallize होगा,
तो वो प्योर मेटल की क्रिस्टल देगा, इम्प्योरिटीज मेल्ट में रहेंगी, दे रिमेन इन द मॉल्टन पार्ट ऑफ द मेटल। अब करना क्या है, वी टेक द मेटल एंड हीट इट विद ए सर्कुलर हीटर, सर्कुलर हीटर की मदद से इसको हीट करेंगे बच्चे, ठीक है। ये देखिए मैं इधर दिखाता हूं आपको, ये हमने मेटल ले लिया, सपोज ये हमने मेटल ले लिया, हमने एक सिरे से स्टार्ट करना है, इसको सर्कुलर हीटर से हीट करना, सर्कुलर हीटर से हीट किया, दैट पार्ट ऑफ मेटल मेल्ट, वो हिस्सा मेल्ट हो जाएगा, देन वी स्लोली मूव द सर्कुलर हीटर फ्रॉम वन एंड टू द अदर, जैसे ही बच्चे सर्कुलर थोड़ा आगे जाएगा, इतना हिस्सा मेल्ट हुआ है ना, ये आगे गए, देखिए सर्कुलेटर आगे मूव किया, यहां पहुंच गए, जो पिछला हिस्सा है बच्चे वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, और अगला मेल्ट, ये क्रिस्टलाइज होना शुरू हो रहा है, अगला मेल्ट। जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ रहना ज्यादा पसंद करती है, मेल्ट में, वो इम्प्योरिटी आगे मूव कर जाएगी और यहाँ मिल जाएंगे आपको प्योर क्रिस्टल्स, इस जगह मिल जाएंगे प्योर क्रिस्टल्स। स्लोली मूव करना है ताकि इम्प्योरिटी भी उसके साथ मूव करे, हीटर के साथ मेल्ट में मूव करे, ठीक है। आहिस्ता 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 सारी इम्प्योरिटी एक सिरे पे आ जाएगी, ऑल द इम्प्योरिटीज गेट कलेक्टेड एट वन एंड, एक सिरे पे आ जाएगी हीटर के साथ मूव करते करते, है ना, उस सिरे को हम काट देंगे, विल कट दैट पार्ट ऑफ द मेटल, दिस इज द वे। ये देखिए बच्चे, सो यहां से भी रीड आउट कर देता हूं मैं, this method is based on the principle that impurities are more soluble in the melt than the pure metal, hence an impure metal on solidification will deposit crystals of pure metal and impurities will remain behind in the molten part. In this method, impure metal rod is taken, circular heater is fitted around one end of the metal rod. As a result, this portion of metal rod melt. एक सिरे को हम हीट करेंगे सर्कुलर हीटर की मदद से, है ना, तो उससे क्या होगा, वन एंड ऑफ द मेटल रॉड मेल्ट कर जाएगी। एज ए रिजल्ट दिस पोर्शन ऑफ मेटल मेल्ट, द हीटर इज देन स्लोली मूव्ड अलोंग द रॉड, इसको स्लोली मूव करेंगे अलोंग द रॉड, as the heater moves slowly, impurities also move into the adjacent molten part because impurities has more tendency to remain in the melt than go with the, तो जैसे आपका हीटर आगे मूव करेगा, जो इम्प्योरिटीज है वो हीटर के साथ मूव करेगी, वो विद द मॉल्टन पार्ट, पीछे जो आपका मेटल बच जाएगा दैट क्रिस्टलाइज इनटू प्योर मेटल। एज द हीटर मूव्स slowly the impurities also move into the adjacent molten part, whereas molten metal present in colder region solidifies, colder region में molten metal क्या हो जाएगा बच्चे, सॉलिडिफाई। हीटर आगे मूव करी, सर्कुलर हीटर लगाया हुआ बच्चे, ये मूव कर रहा है आगे, है ना। In this way, impurities are made to move into one end. Impurities एक सिरे पे चली जाएंगी, and that end is cut off. उस end को हम cut off कर देंगे. This method is used to prepare semiconductors of high purity like germanium, silicon. Time consuming है, इसको तभी यूज करेंगे जब हमें हाई स्टेट ऑफ प्योरिटी में मेटल चाहिए। उसके बाद है बच्चे वेपर फेस रिफाइनिंग। वेपर फेस रिफाइनिंग बेसिकली वैन एर्कल मेथड से मिलता जुलता मेथड है, सिर्फ उसमें हम आयोडीन का इस्तेमाल किया, टाइटेनियम जिरकोनियम, टाइटेनियम जिरकोनियम बच्चे हम यूज किए। तो वेपर फेस रिफाइनिंग में क्या है बच्चे, इन दिस मेथड सिमिलर, मैंने बोला मैंने मेथड की तरह सिमिलर है ये। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सर्टेन मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू अनस्टेबल कंपाउंड्स व्हाइल द इंप्योरिटीज आर नॉट अफेक्टेड। इंप्योरिटी अनअफेक्टेड रहेगी, हम मेटल को कन्वर्ट कर लेंगे अनस्टेबल कंपाउंड में। द कंपाउंड फॉर्म डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव द प्योर मेटल। जैसे निकल को हम इस मेथड से रिफाइन करते हैं, निकल को कन्वर्ट करते बच्चे निकल टेट्राकार्बोनाइल में एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर ब्रेक्स टू गिव बैक द निकल इन प्योर स्टेट। इंप्योरिटीज रह जाएगी किसमें, कंटेनर में, इंप्योरिटी कंटेनर में रह जाएगी, आपको मिल जाएगा निकल टेट्राकार्बोनाइल, है ना। तो निकल टेट्राकार्बोनाइल जो है उसको हम स्ट्रांगली हीट करके वापस ले लेंगे प्योर निकल। वैन एर्कल मेथड की तरह है, वहां पे हमने जिरकोनियम और टाइटेनियम को प्यूरिफाई किया, यहाँ हम निकल को कर रहे हैं, बस इतना फर्क। Next method is chromatographic method. This method is based on the difference in adsorbing capacities of metal and its impurities on suitable adsorbent. Adsorbing capacity of the metal and the impurity. In this method, suitable adsorbent like alumina is packed in glass column. The mixture to be separated is dissolved in suitable solvent
and applied on top of column. The components of mixture get adsorbed on column at different places. Then they are extracted from column with the help of suitable solvent called eluent. Eluent dissolves the different components selectively. The weakly adsorbed components is eluted first, followed by strongly adsorbed component. मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है. लेट मी शो यू. इसमें क्या बोल रहा है वो कि एक आपने कॉलम तैयार करना है. कॉलम तैयार किया, जैसे ये आपने ले लिया एक अपरेटस, इसमें आपने सूटेबल एडसॉर्बेंट पैक कर देना, से एल्यूमिना. एडसॉर्बेंट वो होता है जो सरफेस पे सब्सटेंस को अपने स्टिक करवाए. फिर हमने सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्सचर को डिसॉल्व करना. बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ. मिक्सचर ऑफ द मेटल ए प्लस बी, सूटेबल सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व किया और इस मिक्सचर को यहाँ डाल देना, यहाँ. ठीक है. सपोज ए इसमें मेटल है और बी इसमें इम्प्योरिटी है. अब जो इम्प्योरिटी और मेटल है, दे हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी. डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी. व्हेन दे मूव डाउनवर्ड्स, जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी ज्यादा है वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी कम है वो बाद में एब्जॉर्ब होगा. से ए की एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी ज्यादा है वो पहले एब्जॉर्ब हो जाएगा, बी की कम है वो बाद में. जब ये नीचे को मूव करेंगे ना बच्चे, ए पहले बी बाद में. बाद में फिर एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम एलुएंट कहते हैं, एक्सेस में डालना. एक्सेस एलुएंट क्या करेगा, ए और बी को अपने साथ धो के अपने साथ डिसॉल्व करके नीचे को ले जाएगा. पहले कौन जाएगा, जिसकी एब्जॉर्प्शन कम हुई है. तो पहले कौन निकलेगा बच्चे, बी. बी निकल जाएगा. जब बी निकलेगा ना तो ए भी यहां पहुंच जाएगा, ऐसे हो जाएगा. जब बी निकला, हम एलुएंट डाल रहे हैं, ये देखिए बच्चे, हम एलुएंट डाल रहे हैं, बी निकल गया तो ए भी यहां पहुंच जाएगा. इसने दोनों को मूव करना नीचे को, ए और बी दोनों को. लेकिन चूंकि बी की पकड़ एड्सॉर्बेंट के साथ कम है तो बी जल्दी भागेगा, ए स्लोली भागेगा. तो ए यहां पहुंच गया. जब बी सारा निकल गया, उसके बाद हम और एलिमेंट डालेंगे, ए को निकाल देंगे. दिस इज हाउ, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. इस टेक्निक को हम कहते हैं बच्चे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक. तो ये कब यूज होती है, व्हेन द टू सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी. जब दो सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी क्या हो, डिफरेंट. ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं बच्चे. फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का एक्स्ट्रा दिया हुआ है कुछ. समटाइम्स फ्रॉथ फ्लोटेशन कहाँ यूज किया था हमने, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में. कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने इस मेथड को यूज किया था. समटाइम्स दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग वन सल्फाइड ओर फ्रॉम द अदर. कई बार हम इस मेथड को एक सल्फाइड ओर को दूसरे सल्फाइड ओर से सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं, बाय एडिंग डिप्रेसेंट्स ऐड करके, which prevent certain type of particles from forming froth. Sodium cyanide is used as depressant in separation of lead sulfide and zinc sulfide. NaCN forms complex with zinc sulfide. Sodium zinco-cyanide ये बनाया बच्चे on the surface of zinc sulfide and thus prevents it from frothing. Hence, sodium cyanide act as depressant. Sodium cyanide does not affect lead sulfide. Lead sulfide forms froth and gets separated from zinc sulfide. देखिए ये बच्चे, मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये एडिशनल बच्चे हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ा था, वहां से छूट गया था. जैसे हमने लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड ले लिया. जो हमने पहले किया था ना बच्चे, वो था सेपरेशन ऑफ इम्प्यूरिटी फ्रॉम द ओर. यहाँ पे है सेपरेशन ऑफ वन ओर फ्रॉम द अदर. इसमें हम क्या डाल रहे हैं, सोडियम साइनाइड. सोडियम साइनाइड क्या कर रहा है, जिंक सल्फाइड से रिएक्ट करके इसके सरफेस पे बना रहा है ये कॉम्प्लेक्स, इसके सरफेस पे जिंक सल्फाइड पार्टिकल के सरफेस. लेड सल्फाइड को ये इफेक्ट नहीं कर रहा. उसके बाद हम पाइन ऑयल और वाटर में इसको डाल रहे हैं, वो तो पता ही है आपको, ट्रांसपोर्टेशन में पाइन ऑयल और वाटर का इस्तेमाल करते हैं. फिर हम इसमें से ब्लास्ट ऑफ एयर इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना. पाइन ऑयल फॉर्म्स फ्रॉथ एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस. पाइन ऑयल फ्रॉथ बनाएगा, फ्लोट ऑन द सरफेस. लेड सल्फाइड जो है वो बच्चे पाइन ऑयल के साथ, उसकी एफिनिटी पाइन ऑयल के साथ है, इट गोज विद द फ्रॉथ. व्हेयरएज जिंक सल्फाइड फ्रॉथ नहीं बनाएगा क्योंकि इसके सरफेस पे क्या बन चुका है, Na2ZnCl4. एक ओर को दूसरी ओर से सेपरेट करने के लिए भी हम यूज करते हैं किसको बच्चे, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. लेड सल्फाइड फ्रॉथ के साथ जाएगा,
और एडजाइनिंग कंटेनर में इसको बच्चे कलेक्ट कर क्रॉस स्पिल्स ऑफ, क्रॉस स्पिल ऑफ हो जाएगी, टूट जाएगी, टॉप पे जाके नीचे गिर जाएगी और बाद में फ्राद को हम तोड़ के एसिड के साथ लेड सल्फाइड को यहाँ से निकाल लेंगे। ये मेथड था फ्राद फ्लोटेशन प्रोसेस। सो दिस वाज cheapest and most abundant reducing agent is coke. ये जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। This was all about this methods of purification of crude metal. Thank you very much.